It's really a good day for us to see you here and काफी वार्तालाप होगी इस बारे में of work what we have done so far, not very much, but definitely, the way your path from shaping the grassroots governance into building the globally recognized movements, which certainly demonstrates how local action can ripple into systemic change. At its core, what I find is this journey is all about equity, dignity, and participation. These are the core values that resonates well universally and inspire the collective responsibility together. So together, such initiatives definitely it what do we say, in a common language, it forms a continuum which is like moving from rights to governance, from the leadership positions to the cultural transformation. Definitely, they are not just the vision. I mean, definitely it's your vision, but it's not limited to only your vision, but it's a mutual call to action, which is like inviting the societal changes, the institutions, different leadership ladder, people are at different positions, and the communities to co-create a future where justice is accessible, where governance is inclusive and leadership is participatory, and the norms are reimagined. So what जो आपका एक जो SWT Foundation related whatever work you are doing, which is definitely addressing the equitable rights, the equitable access to rights, and it is all about ensuring that every individual, regardless of their class, gender, class, caste, religion, or any particular geography for that matter, can claim and exercise their legal and their social entitlements without barriers. It moves beyond the formal recognition of rights to focus more on the accessibility. You also work towards simplifying the procedures, removing the systemic challenges and the exclusions, and creating the mechanisms that makes justice which is tangible by everybody and approachable. So in fact, it's like rather than treating gender equity as an add-on, this concept embeds it into very structures of governance. So it means like designing the policies, designing the budgets and decision making, creating frameworks that consistently account for gender equities and the realities by institutionalizing the gender governance, the format on what you're working on. The governments and the organizations also try shifting from reactive measures to proactive and the systemic accountability. In your journey, my first question to you, Sunilji, would be in your journey from being, Sarpanch in Bibipur to pioneering the women-friendly panchayats, what were some of the most defining moments that basically shaped your commitment towards the gender justice and the rural transformation? Over to you. शुक्रिया ऋचा। वैसे तो मेरी लाइफ में तो मोमेंट्स ही मोमेंट्स हैं। मैं किसी एक को तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जो इनिशियल फेज में जो मोमेंट आया, अगर मैं मेरी लाइफ को दो पार्ट में देखता हूँ। एक, जब मैं सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहा था, फिर जब मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाह रहा था, और आज जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से सोसाइटी में, घर में बड़े हुए होते हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, पैट्रियार्कल नॉर्म सोसाइटी की है, कुछ भरी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी, और फिर वो तो वैसे ही हमारे विचार होते हैं, फिर वो हमारे दिमाग का भोजन बन जाता है। तो मेरे अंदर भी पैट्रियार्की तो थी, काफी थी, कम नहीं थी। और पैट्रियार्की थी तो पता नहीं चला। हम सोचते थे कि लड़के ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सब तरफ वैसे ही दिख रहा था, और लड़कियों की डेफिनेशन अलग थी। तो ये जो बदलाव आया, वो माँ का बेटा होते हुए या बहन का भाई 2012 को मैं काफी खुश था। नर्स ने बड़े धीमे शब्दों में कहा, बेटी हुई है, और मेरे चेहरे पे खुशी थी। वो बड़े आराम से बोल रही थी। मैं उसको कुछ खुशी में कुछ दे रहा था, वो ले नहीं रही थी कि डॉक्टर गुस्सा हो जाएगा। या फिर बहुत सारे रिचुअल्स बना रखे हैं जो हम वैसे ही करना चाह रहे थे। तो सोसाइटी को, जैसे थाली बजना है लड़कों, तो गांव को लगा कि सरपंच के घर बेटा पैदा हुआ है, तो बेटी थी। छठी गवाई गई तो चेहरा देखा, तो फिर उनको तब यकीन हुआ कि वाकई में लड़की है। फिर वो सारी चीजें थी। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, उसको फाइंड आउट करते हैं। गांव के हेल्थ सेंटर में गया तो देखा गांव में
न्यू बॉर्न बेबीज में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, लड़कों की बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसे मोमेंट थे जिन्होंने मुझे झकझोर दिया। और मैंने तो मास्टर्स मैथमेटिक्स में किया। मैं टीचर रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ। और जॉब छोड़ के मैं तो कोचिंग देता था, इंजीनियरिंग की कोचिंग देता था मैं तो। और फिर वो सब छोड़ के गांव में जाकर मैं सरपंच बना। तो मैंने तो ये कैलकुलेशन कहीं नहीं देखी थी। मास्टर्स करके इतनी थ्योरम्स और स्टैटिस्टिक्स को सोल्व करते हैं, लेकिन सेक्स रेशियो का फार्मूला तो हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि क्या होता है। तो ये ऐसा मोमेंट था कि मैं जिस गांव में हूँ उस गांव का ही सेक्स रेशियो पूरे स्टेट में लोएस्ट स्टेज पे है। तो यहाँ से मेरे मन में आया कि हाँ, ये काम करते हैं। और वो अलग बात है उसके अंदर कि कैसे वो काम पंचायतों के पास होता ही नहीं था। और फिर उसके लिए बहुत सारा संघर्ष और फिर आगे की जर्नी। पूरी दुनिया में या जहाँ पे भी हमारी रीच है। आपका एक और जो कंसेप्ट और इनिशिएटिव है अराउंड कल्टीवेटिंग ग्रास रूट लीडरशिप, जिसमें आप आप एम्फसाइज करते हैं टू नर्चर द लीडर्स फ्रॉम विद इन द कम्युनिटीज, जो जिसमें महिलाएं हैं, यूथ है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। तो जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस कैरी करते हैं उनके दिमाग में, उनके पास जो लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस लोकल नॉलेज एंड लोकल विजडम है लोगों को बताने की। सो इट्स अबाउट इक्विपिंग देम विद द टूल्स, विद द ट्रेनिंग एंड द प्लेटफॉर्म, सो दैट डिसीजंस जो हैं वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस, ensuring at the same time ensuring that governance is also participatory and it rooted in the realities of the most affected community. So इस कंसेप्ट से, इस चर्चा से जुड़ी हुई चीज जो आपका स्पीक अबाउट द मॉडल व्हाट यू हैव taken into consideration, and how do you see this redefining the leadership roles women in villages हैं, जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म चेंज आ सकता है आप। मैंने मेरे जो गांव में किया, शुरू में हमने फीमेल फिटिसाइड को लेकर फाइट शुरू की। तो अ, वो मैंने मेरी लीडरशिप में नहीं की। वो मैं फीमेल्स की लीडरशिप में, मैं सरपंच भले ही मैं था, लेकिन मैं खुद आगे नहीं आया और महिलाओं को आगे लेकर आए। उसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए। हमारे यहाँ तो चौपालों में भी महिलाएं नहीं जाती, घूंघट में होती हैं। चौपाल भी पेट्रियार्कल नॉर्म से जुड़े हुए होते हैं। प्लस लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो 2-3 महीना उसमें लगाया। 18 जून 2012 को देश की पहली महिला पंचायत हुई, ग्राम सभा। उस समय वो देश की पहली थी। और फिर उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई, तो वो फिर हमारे गांव की महिलाओं से मिली और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरपंच ने ये सब हमारे अंदर नेतृत्व लेकर आकर और हमारी लीडरशिप में करवाया। तो फिर वहां से लेटर निकला और पूरे इंडिया में आज के दिन आप देखोगे हर साल 24 अप्रैल एवरी ईयर नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं वीमेन फ्रेंडली पंचायत के। तो फिर मैंने देखा कि महिलाओं की लीडरशिप में ही काम होना कितना जरूरी है। तो वहां से हमारे आंदोलन का नाम पड़ा बेटी बचाओ आंदोलन, जो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2012 में शुरू। उसके लिए फिर हमें स्टेट अवार्ड, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल अवार्ड होते हैं वो भी हमारी ग्राम पंचायत को मिले। और फिर हमारे गांव की जो लड़कियां थी वो शहर पढ़ने नहीं जाती थी और ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था, उस पे काम किया। फिर पंचायत की आपकी बुक्स का खर्च वगैरह खुद हम वहन करते थे। और हमने ग्राम पंचायत में ऐसा माहौल बनाया कि कोई भी लड़की जो है वो पढ़ाई के बगैर ना रहे और कोई ड्रॉप आउट भी ना रहे। तो उस अभियान का नाम बेटी पढ़ाओ था। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट वाज originally started from my बेटी। village in 2012 and later on implemented by Government of India on 22nd Jan 2015 from the same state actually. Really? अच्छा। वो इतने बड़े लेवल पर चली गई कि मेरे गांव के अंदर अब पूरा जेंडर लेबोरेटरी चलता है।
आप देखोगे मोर देन 80 कंट्रीज के लोग मेरे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ सोच देखने आए हैं। और दुनिया के कौन से न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम, गार्जियन, वैनिटी फेयर, कॉस्मोपॉलिटन, आरते, यूएस टुडे, वॉइस ऑफ अमेरिका, कहने का मतलब ये है कि ये सब रिकॉग्निशन गांव को या मुझे क्यों मिली? ये मिली सिर्फ वीमेन लीडरशिप। इसमें सोच में बदलाव लाने में हम कामयाब रहे कि आज के दिन बीबीपुर हरियाणा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसका सेक्स रेशियो आज के दिन सबसे अच्छा है। तो उसका कारण क्या है? वीमेन लीडरशिप। और जब मैं सरपंच रहा और मैंने वीमेन लीडरशिप गांव में पैदा कर, इसमें मैंने देखा कि इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किया। तो मोर देन 107 नेशनल और स्टेट कैंपेन्स हमने हमारे गांव में इंप्लीमेंट किए। गांव के अंदर एंटर करोगे, बेबीपुर द विमेन्स वर्ल्ड विलेज का नाम, लाडो मार्ग हमारे रास्ते का नाम, बेटियों के नाम से नेम प्लेट, पीरियड चार्ट कैंपेन, आपको घर के अंदर हम्म। महिलाओं की पीरियड की डेट चार्ट पर लिखी हुई दिखेगी। वो किसी अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली में भी आपको, तो ये हर घरों में ये, ये हर घरों में इम्प्लीमेंट किया है? हाँ, मतलब करीबन करीबन 60% जो हाउसेज हैं अब उतने घरों में हो गया है। और बट पूरे नॉलेज देश, नॉलेज इम्पार्ट हुआ है ना? नॉलेज तो सभी जगह है। और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ना के बराबर है। फीमेल फिटिसाइड जीरो है। अभी डिक्लेयर किया गया हमारे गांव को जीरो फीमेल फिटिसाइड, बिल्कुल। तो एक गांव जिसमें फीमेल फिटिसाइड सबसे ज्यादा था, आज के दिन वो जीरो पे पहुंच गया है। तो ये सब हमने फीमेल लीडरशिप, फीमेल के अंदर नेचुरली जो लीडरशिप का गुण होता है और उसमें जो हमारे अंदर जो पेट्रियार्की होती है कि मैं सरपंच हूँ, मैं ही आगे बढ़ूं। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो खुद में सभी स्टोरीज, सब अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई। उनकी क्वालिफिकेशन भले ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास हो, लेकिन वो अपने अच्छे अच्छे छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे काफी सारे अपने प्रोग्राम चलाती हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चलाती हैं। तो वो बहुत बढ़ावा हुआ है। और जिस गांव में एक भी लड़की खेलती हुई नहीं दिखाई देती थी, आज के दिन सुबह 4 बजे और शाम के 4 बजे आप देखोगे मोर देन 250 गर्ल्स फुटबॉल और हैंडबॉल के टीम की, मतलब टीम में खेलती हैं एक प्रकार से गांव के अंदर। और कितने सारे अलग अलग कंट्रीज में जाकर आई हैं। तो ये सब उनको लीडरशिप देने का जो मौका था वो हमने दिया कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वजारोहण जो करना होता है, वो भी मैं नहीं करता था। उसमें भी हम कोई भी सिंगल मदर होती थी उसके हाथों से करवाते थे। तो हमने जितनी जो अपॉर्चुनिटी पेट्रियार्की ने उनसे छीन रखी थी, हमने उन वो सारी लीडरशिप जो है उनको दी। और इसका एक नाम रखा, एहसास का सॉफ्टवेयर टू किल द पेट्रियार्कल वायरस। तो एहसास का सॉफ्टवेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 100 सोशल कैंपेन्स एक्चुअली। और बिल्कुल। हम्म। की सोच में फिर और बदलाव हुआ कि महिलाएं तो समझ जाएंगी, पुरुषों का क्या होगा। तो अब हम प्रॉपर रूप से बिल्कुल। जेंडर इक्वेलिटी पर हर एक कैंपेन को, चाहे हम पीरियड क्लासेस लेते हैं तो उसमें मेल भी होंगे, बाकायदा मेनोपॉज पे बात करते हैं तो वो भी होंगे। हालांकि थोड़े से बायस हम फीमेल लीडरशिप पे रहते हैं, जहां मौका मिलता है उनको हम लीडरशिप में ज्यादा रखते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस पे आपको जरूर मिलेगा। तो ये साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लगातार हम जैसे दूर दराज रहने क्षेत्र में रहने वाले, काम करने वाले जो लोग हैं, उनको प्रेरणा देते रहते हैं। और उससे जो इवन मैंने जो काम किया, आज के समय कर रहा हूँ या पहले जो काम किया है,
फीमेल लीडरशिप Hmm. था अगर मेरे गांव की जेंडर लेबोरेटरी में ये सारी चीजें तब्दील कर। तो ये आपकी रीच गवर्नमेंट में पीएम लेवल। हाँ, उसका कारण ये है कि क्योंकि कंटिन्यूसली आप देखिए फ्रॉम 2010 टू 2026 आ गया, 16 साल से हम एक ही चीज पर काम कर रहे हैं प्रॉपर। और उसका कारण क्या है कि लगातार काम किए जाना। अब आप देखो कि मेरे गांव में नेशनल वर्कशॉप होती थी 3-3 दिन की। कौन इमेजिन करे कि ये तो यार यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट के काम होते हैं, लेकिन पंचायत के तौर पे मैं ऑर्गेनाइज करवाता था। गांव की चौपालों में आईआईटी से लेकर आईआईएम तक के प्रोफेसर जाते थे। वो देख के हैरान रहते थे, गांव में ही रहते थे, इतने सारे कंट्रीज से लोग आते थे। हार्वर्ड, येल, कैम्ब्रिज सभी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट हमारे यहाँ आए हैं। ये जो मुंबई में धीरू भाई अंबानी स्कूल है, यहाँ के स्टूडेंट्स हमारे गांव में आते हैं। इनके स्टूडेंट्स के लिए जो हम्म। इनको सोशल वर्क करना होता है, उसको दिखाने के लिए पिछले दिनों भी एक ग्रुप आया हुआ था। आईआईएम के स्टूडेंट 3-3 दिन ठहर कर जाते हैं। तो क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम आ गया था, लोग अपने आप लिखते रहते थे और लिखते रहते थे, तो कोई ना कोई माध्यम तो ऐसा बनता है और कंटिन्यूअसली रिसर्च होता है। बिल्कुल। मोर देन 1,50,000 के करीब आर्टिकल्स हमारे कामों पर छपे हैं, थ्रू रीजनल लैंग्वेज से लेकर स्टेट, सेंटर और अलग फॉरेन लैंग्वेज। आप चाहे चाइना की मैंड्रिन लैंग्वेज देख लो, जापानीज, इटालियन, स्पेन, सब में है प्रॉपर पूरे तरीके से। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। तो इसका कारण क्या होता है कि जब हम्म। आप लगातार काम करते रहते हो तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है। लाइकवाइज मैंने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन शुरू किया। मैंने तो एक सेल्फी मेरी बेटी के साथ डाली थी सोशल मीडिया पे, और मैंने कहा लेट्स एंजॉय कि हम अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लें। तो वो पहला मोमेंट था 2015 में, और वो वायरल हो गया। फिर मैंने उस पर कंपटीशन करा दिया। कंपटीशन कराया तो देश भर से सेल्फीज आई। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में मन की बात में 15 में बोला। तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। उसने बेटियों के का प्यार का जो महत्व है समझाने के लिए सेल्फी विद डॉटर शुरू किया। और फिर ऐसे ही एक दिन मुझे राष्ट्रपति भवन से कॉल आया कि अ, आप राष्ट्रपति भवन आइएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपसे मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने मुझे न्योता दिया राष्ट्रपति भवन ने। तो उनको गांव अडॉप्ट करके काम करना था, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो 2016 में जब उन्होंने गांव गांव को अडॉप्ट करने का काम शुरू किया, उन्होंने कहा यार मैं मुझे बताया कि वो लंदन में गए हुए थे और किसी मैगजीन में आपका इंटरव्यू पढ़ा। मैं देख के हैरान हो गया कि इतनी बड़ी मैगजीन है और उसमें हरियाणा के गांव के सरपंच का इंटरव्यू छपा हुआ है। तो फिर उन्होंने आते ही मुझे बुलवाया और मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लगा दिया, और मैंने उसको लीड किया राष्ट्रपति भवन से। फिर देन आई मेट विद ऑनरेबल लेट मिस्टर रतन टाटा एक्चुअली। और उन्होंने कहा कि क्या फंड्स चाहिए आपको, आप इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी साथ में हमारी हेल्प की। और मुझे लगता है कि लगातार एक चीज को अच्छे तरीके से देखना और उस पर मेहनत करना। जैसे मैं 15 से ही मिसिंग गर्ल्स के मुद्दे पर बहुत काम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फार्मूला नहीं सूझ रहा। लेकिन अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एआई सेल्फी विद डॉटर लॉन्च किया। उसमें ऐप के थ्रू जो लड़कियां गायब हो चुकी हैं 8, 7, 10 साल पहले, वो अब कैसी दिखती होंगी, और उनके पेरेंट के साथ उनका सेल्फी प्रॉपर हम्म। तैयार करवा के उसको पोस्ट करने का कैंपेन हमने शुरू किया। जिनकी बेटियां नहीं हैं वो कैसे महसूस करे कि अगर मेरी बेटी होती तो कैसी होती, वो इमेजिन करे। तो ये सारा बिल्कुल। जो काम है कंटिन्यूअसली होता रहता है। और मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो फोन पर बात करते हैं,
मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने 3 बार कॉल किया है, पूछा है कि आपका क्या विजन आगे करने का। जब मैंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटीज में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने तुरंत रूप से मुझे यूनिवर्सिटी का इतनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऊपर मुझे मिले काम करने के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लगातार काम किए जाते हो और सच्चे मन से काम करते हो। भाई मैं तो आज भी उसी गांव बीवीपुर गांव से आज के दिन में महाराष्ट्र में नागपुर और वर्धा में, और मैं उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आसाम, तो इतने सारे स्टेट्स में जब हम आज के दिन काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मैंने हम्म। सेल्फी विद डॉटर भी करवाया है, पीरियड चार्ट भी करवाया। तो वहां के हम्म। लोग भी साथ में इतने कि आज के दिन हमारे पास जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी हमने टीमें बना रखी है। तो गांव में ही रह के आप जब इस हम्म। प्रकार की चीजें अच्छे स्तर पे कर लेते हो तो आपको लगता है यार कि चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बात सिर्फ ये होता है कि एफर्ट जो है वो आपका कितना अच्छा है और कितना ईमानदारी से आप काम करना चाहते सो ये जो सुनील जी अभी आपने बताया कि आपको कनेक्ट कर किया पी रिसर्च डेवलपमेंट। हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज में कंसल्टेंट हूँ, कई में एक बेसिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और मैं यूनिसेफ में कंसल्टेंट। तो वहां पर जो मेरा काम रहता है वो रहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर 60-40 का आज के दिन क्यूरिकुलम आ गया है, तो मैंने क्यूरिकुलम डिजाइन करवाया है कि जैसे जो बेसिकली जितनी सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ी होती है, वो पहले ही आम लोगों के लिए और प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, इसका मेरा खुद का एक 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो यूनिवर्सिटी उसको अपने कोर्स में शामिल करती है, वो सभी के लिए कंपलसरी होता है। ऐप बेस है प्रॉपर। अभी जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है उसमें 2,57,000 स्टूडेंट है, तो सभी के लिए करना कंपलसरी है और वो उनकी डिग्री में बाकायदा लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कोशिश करते हैं। प्लस नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट कमेटी है जो, तो उसका जो उनका क्राइटेरिया होता है उसको मैं साथ में पूरा करवाता हूँ कि कैसे वो विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम के द्वारा, थ्रू विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, थ्रू यूनिवर्सिटी के कुछ मूवमेंट्स कैंपेन्स डिजाइन करते हैं, उस करवाते हैं। तो उससे उनको भी फायदा होता है, उनकी ग्रेडिंग में भी फायदा होता है, सोशल वैल्यूज डेवलप होती है, पीस हार्मनी पे काफी काम होता है। तो ऐसे करके सब जगह से मुझे मतलब, इवन मैं अब की बार जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहां पर भी अप्लाई कर रहा अरे वेरी गुड। प्लीज प्लीज यू विल बी मोस्ट वेलकम हियर। हूँ। मैं आता रहता हूँ। नहीं नहीं मुंबई डेफिनेटली। में आजाद मैदान में आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें 5,000 ग्राम पंचायत के सरपंच, तो वो हमने 2024 में किया था। और अच्छा उस, ओके। हाँ, मैं ग्राम पंचायत में आपके जितने ग्राम पंचायत हैं उसमें से मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार सरपंच जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। और थ्रू मतलब हमारी जूम गूगल मीट चलती रहती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के संभाग के ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ हम सरपंच को ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, तो वहाँ मैं विमेन फ्रेंडली पंचायत की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। यूनिसेफ में मैं चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत तैयार करता हूँ। सुनील जी थैंक यू सो मच। हमको मुझे स्पेशली इतना अच्छा लगा कि जो चीज बिकॉज मेरी भी नन्ही बच्ची है and जो चीज हम सब वुमेन टैकल्ड अप्रोप्रिएटली ऐसा नहीं है बट उसका एक जरिया है, एक माध्यम है, एक मैकेनिज्म है जो आप कर रहे हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट एंड जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर एंड में इनवाइट करिए या ना करिए बट हम आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ बैठ चाय पीना चाहते हैं एंड और बातें करना चाहते हैं एंड और कैसे हम जुड़ सकते हैं बिकॉज यही चीज
कंसेप्ट जो है वो राजस्थान में लानी है हमें। आपसे मैं इत्मीनान से बैठेंगे और एक चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि ये चीज मुझे राजस्थान में लानी है। वहां पे भी सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही माइंडसेट है। वो माइंडसेट को, वो रूढ़वादी सोच है जो है, रेडिकल अप्रोच है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो। एक एक बार मैं आती हूँ, मैं, मेरी टीम, हम आते हैं आपसे मिले। थैंक यू इतना पावरफुल, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एंड इंस्पायर करिए नेक्स्ट जनरेशन को। थिंक, एक्ट एंड क्रिएट मीनिंगफुल चेंज विच इज रिजल्टेड एट द ग्रास रूट लेवल, एंड ये चीज ग्लो बना के देते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सुनील।